Good evening, everybody. We will start now. So we will continue with our physics topic, which we had left last time. Just wanted to know, I'm audible and visible. Just put in chat box. Okay. So we'll start with our topic. We're already into the book. I hope it is visible to you now. Just give me a second. I am keeping something for you so that you can read it. In case you have hard copy, you start reading this because we have to start from this floor. So I'm starting measurement of mass. We all know that we are actually working in the measurement and units. That is a chapter 1 of our physics 11 standard science. Now, after measuring lengths, distances of some celestial bodies, then going into the microscopic level and going through the bit list of what is microscopic units which are used like a micro, nano, pico, and going little in a higher version where we have basically mega, giga, tera, etc. In lower version of units, we also learned about femto. So those things you will remember. And now we are going into the mass. Mass also we have similarly something called kilogram. Then we'll go into the little higher side, that is tons, and in lower side something called AMU, that is atomic mass unit. So let's read this. Sankalp, you can read this. Since 1889, a kilogram was the mass of a shiny piece of platinum iridium kept in a special glass case at the International Bureau of Weights and Measures. This definition of mass has been modified on 20th May 2019. The reason being that the carefully kept platinum iridium piece is seen to pick up microparticles of dirt and is also affected by the atmosphere, causing its mass to change. The new measure of kilogram is defined in terms of magnitude of electric current. We know that electric current can be used to make an electromagnet. An electromagnet attracts magnetic materials and is thus used in research and in industrial applications such as cranes to lift heavy pieces of iron and steel. Thus, the kilogram mass can be described in terms of the amount of current which has to be passed through an electromagnet so that it can pull down one side of an extremely sensitive balance to balance the other side which holds one standard kilogram mass. Bas. So nicely read. Now we'll get into the whatever he has read. I'll just try to explain. You all know that we keep hearing since your childhood and since my childhood that whenever we say it's a 1 kg, it's a 1 kg kept at the International Bureau of Weights and Measures in Paris. But what is it basically? Platinum iridium alloy, and that particular shiny piece is kept of that particular weight, which is considered as a 1 kilogram. But obviously anything kept in a very restricted atmosphere also bound to pick up something from around things. What it will be? Obviously some microparticles of the dirt, dust, etc. I'm not talking that it is in open, okay, in dry country like India, but then wherever and whatever location it is been placed, it is obvious that it will pick up some micro particles of dirt. And obviously there will be some minor addition subtraction because of the moisture or something like this, which will add to the or change the weight of that particular mass. Now new measure of kilogram is defined, which will not be dependent on such physical factors which are basically due to atmospheric condition, but it is now direct measure of something which will be constant throughout when we talk about something special. अब ये मैं समथिंग स्पेशल क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको समझना होगा, क्योंकि यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि मैं कुछ बताने वाला हूँ, जैसे कि यहाँ हम बता रहे कि इलेक्ट्रिक करंट कैन बी यूज टू मेक अ इलेक्ट्रोमैग्नेट. ये कोई नई बात नहीं है, हम सबको पता है. इलेक्ट्रिक करंट अगर सॉफ्ट आयन से पास करते हैं
तो टेम्पररी या परमानेंट मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है और इस तरीके से हम लोग मैग्नेट्स बनाते हैं। यहाँ ये बोला जा रहा है कि इस तरीके से जब मैग्नेट तैयार होगा और वो जब चीजों को खींचेगा तो खींचने के दरमियान जो उसके अंदर अट्रैक्शन का फोर्स आया वो इतना होना चाहिए कि उसके कारण जो बैलेंस है वो इस लेवल पे बैलेंस हो जाए कि एक केजी को होल्ड कर सके। अभी आप बोलेंगे कितना, ये तो मतलब उल्टा पुल्टा हो गया, इतना कॉम्प्लिकेशंस में जाने की क्या जरूरत है। कॉम्प्लिकेशंस में जाना इसलिए पड़ता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि वो जो चीज डिफाइन की गई वो किसी भी फैक्टर से अफेक्ट ना हो। एक वर्ड जो हम कब से इस्तेमाल कर रहे हैं ना, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये सचमुच स्टैंडर्ड है। इट इज नॉट गोइंग टू चेंज बिकॉज ऑफ सर्टन कंडीशंस, एटमॉस्फेरिक, बाउंड्री, टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब चीज मद्देनजर या कीपिंग ऑल दिस थिंग इन माइंड, दिस पर्टिकुलर डेफिनेशंस एंड कॉन्सेप्ट्स एंड द फंडामेंटल्स आर चेंज। आई होप यू हैव गॉट दिस पर्टिकुलर पॉइंट। आगे का पैराग्राफ मैं ही पढ़ता हूँ, फिर मैं आप में से किसी को बोल दूंगा। While dealing with mass of atoms and molecules, kg is inconvenient unit. Therefore, आगे अभी हम लोग बोलेंगे 1 किलो आइटम लिए मैंने XYZ एलिमेंट के, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि कितना लेना है। तो at atomic level, we will not be using kgs or grams. We will be using something called atomic mass unit. It will be easy to compare mass of any atom in terms of the mass of some standard atom, which has been decided internationally be carbon 12 atom. अभी यहाँ आपको इमीडिएटली पहला सवाल आना चाहिए और आते भी रहने चाहिए इस टाइप के सवाल, कार्बन 12 ही क्यों। फिर भी हम उसमें आगे जाएंगे, एक्सप्लेनेशन वो खुद ही दे देंगे। द 1/12th mass of an unexcited atom of carbon 12 is called atomic mass unit. One atomic mass unit is equal to 1.660540 into 10 raised to minus 27 kg. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं केजी में 1 kg एटम मैंने इसके लिए ऐसे कुछ बात कर रहा था। अभी मैं यहाँ बता रहा हूँ कि 1 kg का 1 एटॉमिक मास यूनिट से कंपैरिजन क्या है। इस तरीके से पकड़ लीजिए आप कि 1.6 के ऊपर आगे की तरफ मैंने डेसिमल शिफ्ट करके 27 जीरो दे दिए, तो 26 जीरो दे दिए, सॉरी प्रिसाइजली। तो विथ एन अनसर्टिनिटी ऑफ 10 इन लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। लास्ट 2 डेसिमल प्लेसेस में 10 का अनसर्टिनिटी रहेगा जब मैं बात कर रहा हूं कि कितना प्रिसाइजली 1 एटॉमिक मास यूनिट इतना केजी होता है। इतना केजी मतलब 1.660540 into 10 raised to minus 27 की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये प्रेसिजन, ये एक्यूरेसी, ये दोनों अलग टर्म है। क्या है क्या वो भी हम आगे शायद पढ़ेंगे। तो ये जो टर्म्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये मेरी तरफ से, क्योंकि मैं ये सारी चीजें कहीं ना कहीं इस्तेमाल करता हूँ। और जो नई टर्म्स आप सीख रहे, जैसे C12 देख लिया आपने, 1 एटॉमिक मास यूनिट देख लिया, फिर उसका वैल्यू देख लिया केजी के टर्म्स में, तो ये सारी चीजें ना आपको थोड़ा याद रखना होगा। फिर भले आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो कि इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हो या बीएससी की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अपने एक नॉलेज डोमेन का हिस्सा बनती है जो जिंदगी में कहीं इस्तेमाल होती है। और फिर उस टाइम पे, प्रिपरेशन के टाइम पे टेंशन नहीं आता। तो हमने यहीं पे मास को छोड़ दिया। अभी हम जाने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। और ये कोई नई चीज नहीं है। आजकल मोबाइल में क्या लेवल का टाइम मेजरमेंट होता है या स्टॉप वॉच में, ये बताने की जरूरत नहीं, फिर भी लोग घड़ी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि आदत से मजबूर है। तो यही जो घड़ी से शुरू हुआ, उसके पहले जो रेत का घड़ी था उससे शुरू हुआ, उसके पहले भी कुछ और पानी का घड़ी था उससे शुरू हुआ था, उसके पहले कुछ शैडो गेम्स थे जो आप जंतर मंतर में देखते हो उसका घड़ी था। ऐसी बहुत सारी चीजों का चीजों से मेजर किया गया समय को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर सही मायने में कोई टाइम मैनेज करता है तो अपने टारगेट अचीव करना उसके लिए आसान हो जाता है। लेट्स गेट इनटू द मेजरमेंट ऑफ टाइम। ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज, मैं नहीं पढ़ता, किसी और को बोलता हूँ। चलो, मुझे तो मालूम नहीं ग्रुप में कौन है, मैं देख भी लेता हूँ ग्रुप में कौन है आज। जस्ट गिव मी सेकेंड। यहाँ ग्रुप में 5 लोगों में से एक तो मैं हो गया। फिर है अथर्व शेळके हैज एंटर्ड। अथर्व, आप टाइम पे नहीं आते हो, ये गलत बात है। आपको एटलीस्ट 2 मिनट पहले एंटर करना चाहिए। अथर्व, स्टार्ट रीडिंग।
The SI unit of time is seconds. For many years, duration of one mean solar day was considered as reference. A mean solar day is the average time interval from one noon to the next noon. Average duration of a day is taken as 24 hours. 1 hour is of 60 minutes. बढ़िया. And each minute is of 60 seconds. Thus, a mean solar day that is equal to 24 hours. 24 into 60 into 60 that is equal to 86,400 seconds. Accordingly, a second was defined as 1 upon 86,400 of a mean solar day. Stop. थैंक यू. मैं पीछे पन्ना पलटूंगा नहीं, क्योंकि वहां जो पढ़ा वो आपको भी समझ में आया, मुझे भी आया कि पहले कुछ भी मेजरमेंट करना है समय का तो लोग दिनों के हिसाब से चलते थे. मतलब भाई एक मीन सोलर डे मतलब क्या, सूरज जब उगा तब से लेके जब फिर से वो उगने आया तो जो समय हुआ वो. आज हम उसी चीज को बोलते हैं कि भाई ये 24 घंटा है. तो 24 घंटे में क्या है छोटे पार्ट्स. भाई 24 घंटे में 1 घंटे में 60 मिनट्स और 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स. तो अगर मल्टीप्लाई करने शुरू कर दो तो 1 घंटे के अंदर 3600 मतलब 3600 सेकेंड्स. तो 1 घंटे के अंदर 3600 सेकंड है. ऐसे 24 घंटे मतलब एक दिन है. तो 24 इंटू 3600 जवाब आएगा 86,400 seconds is the calculational second quantity of complete one mean solar day. अभी ये मीन सोलर डे के अंदर जो सबसे छोटा हिस्सा हम नॉर्मल लोग गिनना जानते हैं, बिकॉज हमारी घड़ी में 1 सेकंड हिलते हुए दिखता है, तो उसको हम क्या करेंगे भाई एक दिन के अंदर कितने. तो भाई 86,400 सेकंड was defined as 1 divided by 86,400 of a mean solar day. मतलब एक मीन सोलर डे का 86,400वां हिस्सा इज 1 सेकंड. उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, बट ये उल्टा पुल्टा करना आप सीखो, क्योंकि ये सीखना बहुत जरूरी है जब आप मैथमेटिकल या साइंस रिलेटेड मेजरमेंट बेस्ड प्रॉब्लम लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग से क्लियर करना चाहते हैं. ये उस चीज के लिए है जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको कोई भी लॉजिकल चीज आंसर करनी है तो आपको लैंग्वेज के जो जार्गन्स है या कॉम्प्लिकेटेड वर्डिंग है वो भी समझ में आना जरूरी है. और हम लोग स्पेशली अपने 11 के क्लास की बात करें तो जो सिंसियर लोग हैं उनका लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं. जैसे अथर्व का रीडिंग अच्छा है, संकल्प का रीडिंग अच्छा है, इवन समीर का रीडिंग अच्छा है. ये तीन जो ठीक लोग हैं, आर्या कभी प्रेजेंट रहती है एब्सेंट रहती है, उसका भी ठीक ठाक ही रीडिंग है. बाकी सब लोग तो मालूम नहीं क्यों नहीं रहते, बट इट इज ऑब्वियसली बाइंडिंग तभी आता है जब यू पे, तो वो उसके कारण प्रोबेबली दे आर एब्सेंट और उनका अंडरस्टैंडिंग लेवल उतना बढ़ता नहीं है. बट आई एम कंफर्टेबल विद यू 3 पीपल. ओके, इट वाज लेटर, ओ सॉरी अथर्व प्लीज कंटिन्यू. It was later observed that the length of a solar day varies gradually due to the gradual slowing down of the Earth's rotation. Hence, to get more standard and non-varying constant unit for measurement of time, a cesium atomic clock is used. It is based on periodic vibrations produced in cesium atom. In cesium atomic clock, a second is taken as the time needed for 9 9192631,770 vibrations of the radiation wave emitted during a transition between two hyperfine states of CS133 atom. बस वेट, अभी अथर्व आप बिल्कुल पढ़ते बिढ़ते नहीं हो घर पे, लगता है किताब. ये एटीट्यूड मुझे अच्छा नहीं लगता. मैं आपको इसके ऊपर बार बार नहीं बोलूंगा, बट देन यू मिस समथिंग. लाइक आप सीजियम आपको मालूम नहीं है तो सीजियम आपको मालूम होना ही चाहिए. फिर सीजियम 133 जो है आइटम, ये बहुत ही फेमस आइटम है क्योंकि ये एटॉमिक क्लॉक का बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है. फिर यहाँ ये 9192 में तो आपने बहुत बड़ा गड़बड़ किया. तो ये सब चीजें है, ये रिप्रेजेंटेटिव है कि आर यू सीरियस. आप सबको सीरियस होना है, ये अपने क्लास की बेसिक रिक्वायरमेंट है. आप यहाँ क्लास में रहो न रहो, बट सीरियस तो जिंदगी में रहना है. तभी आपका ये जो मार्क्स है, किसी का 90% है, किसी का 97 है, वो बना रहेगा. I am not talking about the percentage and the mark sheet marks. I am talking about the performance of your own
इन एनी लाइफ प्रोजेक्ट जो जरूरी है। आपके माँ बाप जब हमसे बात करते हैं, जैसे जिन लोगों के, तो दे आर वेरी सीरियस कि भाई आपके यहाँ हमको एकेडमिक टीचिंग में सर इंटरेस्ट नहीं है, वो तो मिलेगा ही, वो किताब में रहता है, बच्चे भी पढ़ के समझ ही पाते हैं, बट देन दैट पर्टिकुलर चेंजिंग हैबिट, आप इस पीरियड में हो जहां आप 11th में हो, यहाँ आपके 97% 37% होने में समय नहीं लगेगा अगर आप पढ़ाई लिखाई छोड़ के गांव जाके बैठ जाओ। ओके, मम्मी डैडी को बता दो कि मैं यहाँ एडमिशन फॉर्म भर रहा हूँ और आप मटर गश्ती कर रहे हो। तो ये सब चीज नहीं करनी है, एंड दिस इज नॉट पर्सनल टॉन्ट ऑन अथर्व और संकल्प, इट इज यू हु इज गोइंग टू डिफाइन योर फ्यूचर। तो इसलिए ये सारी चीज आप पढ़े रहेंगे तो आप इतने होशियार हो और इतना अच्छा आपका रीडिंग एबिलिटी है कि ये सब गड़बड़ नहीं होगी। तो अभी मुझे आर्या बताएंगे कि अगर मैं बिलियन, करोड़, लैक्स में ये आंकड़ा पढ़ना चाहता हूँ वाइब्रेशंस वाला, तो कैसे होगा। आई विल नॉट वेट मच। चलो माइक ऑन करो, जल्दी बोलो। चलो समीर बोलो। 91 crore हाँ बोलो, सॉरी सॉरी, समीर बोलो प्लीज। 9 आवाज नहीं आ रही समीर। Sir, my voice is audible. यस यस, कंटिन्यू। Uh, अभी वॉइस ऑडिबल है, ब्रेन शट डाउन हो गया लगता है समीर, दिस इज बैड। एनीवे चलो संकल्प। 9,192,631,770. अभी ये थोड़ी गड़बड़ है, मैंने तुमको अरब करोड़ में बोला था, तुम बिलियन मिलियन में बोलोगे तो सीधा तुमको अमेरिका में सेटल होना पड़ेगा या यूरोप में। तो संकल्प, एक चीज जिंदगी में पक्का दिमाग में डाल दो, सवाल का जवाब देना होता है जब तक आप सवाल देने पूछने के लिए नहीं बैठे। मतलब कमिटी में जब तक आप इंटरव्यू कैंडिडेट जा रहे हो, सवाल सुनना सीखो, उसी का जवाब देना है। जैसे आप इंटरव्यू कमेटी में अपोजिट साइड में बैठ गए जहां पे आपको सवाल पूछने हैं, फिर तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं। सैंडविच खाते खाते भी लोग सवाल पूछ लेते हैं, स्पेस शटल कैसे बनता है। ओके, तो ये सब चीज आप पक्का दिमाग में डालो। मैंने बोला था बिलियन वाला, सॉरी अरब और करोड़ वाला इंडियन सिस्टम, क्या बोलेंगे आप प्लीज। yes. So I have to. ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, टाइम पास नहीं करते, मैं ही बोल देता हूँ। 9 बिलियन 19 करोड़ 26,31,770, करेक्ट बोला, ठीक था ना। यस नो भी नहीं बोल रहे तुम लोग, ठीक है। तो अभी हम लोग आंकड़े में नहीं जाते हैं, हम चलते हैं एक इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये क्या बताया। तो जैसे अथर्व ने अपने लिए पढ़ा कि भाई ये लेंथ ऑफ सोलर डे है ना, वो वेरी होता है क्या। यस, ग्रेजुअली ड्यू टू द ग्रेजुअल स्लोइंग डाउन ऑफ द अर्थ। अभी कौन माइक ऑन करके मुझे बताएगा कि अर्थ को स्लो करने के लिए कौन ताकत लगा रहा है। मतलब भाई संकल्प रोक रहा है, शिरडोन गांव का समीर रोक रहा है, या अथर्व शेड़के जी कल्याण में रहते लगता है, वहां से कोई जोर लगा रहा है, या कड़म्बुली से कोई जोर लगा रहा है, या मानकुर से कोई जोर लगा रहा है, किधर से यार स्लो क्यों हो रहा है। somebody Sun's has gravity. Gravity. नहीं, ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी क्या, ये जवाब हुआ। ग्रेविटी तो अर्थ में है ना, नहीं जिसके सर, पास सन का अट्रैक्शन. सन का अट्रैक्शन की वजह से अर्थ स्लो हो रहा है। और कुछ, अर्थ का वजन बढ़ रहा है क्या। ये सवाल था, अर्थ का वजन बढ़ रहा है ऐसा कितने लोगों को लगता है। मैं चैट बॉक्स नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आप 3-4 बच्चे हो तो माइक ऑन करके बिंदास बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलो ये आपके लिए एक पढ़ाई का जरिया, अर्थ का वजन बढ़ रहा है कि नहीं, और बढ़ रहा है तो क्या उसकी वजह से अर्थ का मोशन स्लो हो सकता है क्या, और हो सकता है तो वो कितना स्लो हो रहा है, उसकी वजह से जो मीन सोलार डे है उसका जो पीरियड है वो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, क्या है, ये सब चीज आप थोड़ा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर पे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ो, नहीं तो अगली बार पूछ लीजिए, मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। ओके, इट्स वेरी सिंपल एंड इंटरेस्टिंग। कीप रीडिंग समथिंग रिलेटेड टू एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि एस्ट्रोनॉमी बड़ा इंटरेस्टिंग है, और एस्ट्रोनॉमी का रास्ता जो है फिजिक्स के थ्रू जाता है। तो एस्ट्रोनॉमी पढ़ते पढ़ते आपकी फिजिक्स में रुचि बढ़ जाएगी, और फिजिक्स इज अ बेसिक साइंस,
so it will help you somewhere somehow. So now हमने जान लिया कि भाई स्लोइंग डाउन ऑफ अर्थ मतलब अगर आपकी लेंथ ऑफ द सोलर डे की वेरी हो रही है तो ऑब्वियसली आप उसको हिसाब के लिए पकड़ोगे तो वो सही बात नहीं है. सो जब हम स्टैंडर्ड टाइम को डिफाइन करना चाहते हैं, सेकंड को डिफाइन करना चाहते हैं, हमको कुछ तो नॉन वेरिंग स्टैंडर्ड लेना पड़ेगा. इन शॉर्ट कांस्टेंट चीज देखनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी. तो ढूंढते ढूंढते लोगों को पता चला कि भाई ये जो एटॉमिक वाइब्रेशंस जो है इनका कुछ इस्तेमाल हो सकता है. सो उन्होंने जब इस मामले में थोड़ा डिटेल में पढ़ाई किया तो उनको समझ में आया कि बेस्ड ऑन पीरियोडिक वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ सीजियम एटम, in cesium atomic clock, a second is taken as a time needed for this many vibrations of the radiations or waves emitted during a transition between two hyperfine states of the cesium 133 atom. अभी ये क्या है? ये है कि कोई भी चीज दो एनर्जी लेवल के बीच में मूव होता है, सब कुछ मूव ही होता रहता है. इट्स ऑल गेम ऑफ एनर्जी. मतलब कहीं कुछ हो रहा है तो उसके पीछे यही भावना है, कम एनर्जी से ज्यादा एनर्जी की तरफ जाना या ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी की तरफ आना. ये चीजें आप धीरे धीरे जैसे साइंस के अंदर जाओगे तो समझोगे कि जो आपके सामने अभी जो भी पड़ा हुआ है, टेबल पड़ा हुआ है या मेटल का टुकड़ा पड़ा हुआ है, एवरीथिंग इज एक्चुअली डायनेमिक इन इट्स इंटीरियर. उसके अंदर बहुत भगदड़ मची हुई है. थोड़ी भी एनर्जी देखो तो इधर से 10, उधर से 20, उधर से 10,000, उधर से 10 करोड़ चीजें ऊपर नीचे हो रही, जो फिजिकली दिख नहीं रही है, क्योंकि एक्चुअली जो उसका मास है, जो उसको एक्स टाइप मतलब पर्टिकुलर सॉलिड फॉर्म दे रहा है, उसके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट इसका नहीं आ रहा है. सो आज की डेट पे इतना ही कि ये जो बड़ा सा आंकड़ा हमने लिखा, ये वाइब्रेशंस ऑफ द रेडिएशंस इमिटेड ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक एनर्जी लेवल मूवमेंट है. और इससे हमको जो टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि ये अनचेंजेबल प्रॉपर्टी ऑफ सीजियम 133 एटम इन दैट पर्टिकुलर एनर्जी स्टेट है. अभी ये थोड़ा मैं लंबा लंबा सेंटेंस बोलता हूँ ना, वो मैं किताब के बाहर का बोलता हूँ, तो आप इस चीज को ना एकदम ऐसा निगेटिवली मत लीजिए. ये सब चीज मैं जो बोल रहा हूँ मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ. आप इसको इस तरीके से मत लीजिए कि सर ये तो समझा ही नहीं. नहीं समझा तो आप पूछ सकते हो, बट फिर भी आपको डराने का मकसद नहीं है इसके पीछे. नाउ कम टू दैट, डू यू नो? आर्या पढ़िए आप. Why is only carbon used and the non-other elements define the atomic mass unit? Carbon C12 is the most abundant isotope for आर्या मत carbon पढ़ो, आर्या and the मत. most होल्ड ऑन, stable होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, one. होल्ड ऑन. रुकिए, आप आपका नेटवर्क ठीक नहीं है, तो आपका जो आप पढ़ रही है वो सबको आवाज नहीं आ रहा है. मैं ही पढ़ देता हूँ. Why is only carbon used and not any other element for defining atomic mass unit? Carbon 12, C12 is the most abundant isotope of carbon and the most stable one. दो चीजें चाहिए थी, एक स्टेबल चाहिए था, दूसरा क्या चाहिए था? अबंडेंस होना चाहिए, बहुत ज्यादा मात्रा में होना चाहिए. कितना है? 98% of available carbon is C12. Earlier, oxygen, hydrogens were used as standard items, but various isotopes of oxygen and hydrogen are present in higher proportion, and therefore it is more accurate to use C12. कोई भी चीज में मेजरमेंट करना है तो थोड़ा मिक्सचर, थोड़ी एरर आएगी. जहां ज्यादा से ज्यादा मिक्सचर में एक चीज प्रेजेंट है, मिक्सचर शब्द मैं गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको आसान बनाने के लिए बोल रहा हूं. तो जहां ज्यादा चीज एक चीज है दो तीन चीजों में, तो वो एक चीज ज्यादा होने के कारण उसका रिप्रेजेंटेशन ज्यादा रहेगा, तो जो आगे जाके एरर आएगी वो कम रहेगी. इसी तरीके से जब कम एरर है मतलब ज्यादा एक्यूरेट है. तो यही हम लोग कारण है कि जिसके कारण हम लोग C12 को इस्तेमाल किया. अभी हम सडनली टॉपिक चेंज कर रहे हैं, एंड टॉपिक चेंज करके हम मेजरमेंट से आ रहे हैं यूनिट्स में, और उस यूनिट्स को हम बोलेंगे, जब फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स में कोई भी चीज को प्रेजेंट करेंगे तो हम उसको बोलेंगे डायमेंशनल एनालिसिस. अब ये डायमेंशनल एनालिसिस इतना लंबा चौड़ा टॉपिक है, बट बहुत सिंपल है. थोड़ा फास्ट चलेंगे. तो फास्ट चलने के लिए अभी 3 लोग हो गए, नहीं समीर नहीं पढ़ा ना, शायद समीर पढ़ना शुरू कर दीजिए. As mentioned earlier, a derived physical quantity can be expressed in terms of some combination of 7 basic or fundamental
फंडामेंटल क्वांटिटीज, आगे पढ़ी। For convenience, the basic quantities are represented by symbols as L for length, mass, M for mass, T for time, and K for temperature, I for current, C for luminous intensity, and mole for amount of mass. The dimension of physical quantity are the powers to which the concerned fundamental units must be raised in order to obtain the unit of given physical quantity. स्टॉप। देखिए, आपने ये तो पढ़ा, आपने ये जाना, आपको तो सबको याद ही है, हम उसमें जाएंगे नहीं कि अगर L फॉर द लेंथ है, M फॉर मास है, T फॉर टाइम, K फॉर टेम्परेचर, ये सब क्या चल रहा है बेसिकली, जो हम इस्तेमाल करते हैं उसी को हमने सिंबल के तौर पे इस्तेमाल किया। ओके, C फॉर द ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो अभी C फॉर वेलोसिटी ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, M ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, वो था नहीं, और एक फंडामेंटल यूनिट था, एंड दैट इज मोल, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर यहाँ पे उन्होंने कुछ बोल्ड टेक्स्ट में लिखा है, इसका मतलब है कि यहाँ जो हम पढ़ रहे हैं उसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर द पावर्स टू विच द कंसर्न फंडामेंटल यूनिट मस्ट बी रेज्ड। मतलब डायमेंशन क्या है, जो फंडामेंटल यूनिट्स है उसको जिस पावर पे रेज करके आपको वो फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट का फार्मूला आ रहा है, वो तरीका है। रेज टू ऑर्डर इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। तो ये सारी चीजें जो है, आज आप लोगों का थोड़ा इंग्लिश ठीक है, इसकी वजह से आपको ये सारी चीजें समझने में तकलीफ नहीं होगी, एंड दिस इज वेयर यू गेट एडवांटेज ऑफ बीइंग फ्रॉम इंग्लिश मीडियम। मराठी मीडियम के बच्चे 10वीं तक बहुत सारी चीजें मराठी में पढ़ते हैं, या वर्नाक्युलर मीडियम वाले हिंदी, गुजराती में, उर्दू में पढ़ते हैं, फिर 11th में उनको तकलीफ होती है। वो आप लोगों को नहीं होने वाली है। इस फायदे का, ये जो इनहेरेंट एडवांटेज आपके साथ चल रहा है, इसका थोड़ा फायदा उठाइए। आगे चले, समीर पढ़ो। When we represent any derived quantity with appropriate powers of symbol of the fundamental quantities, then such an expression is called dimensional formula. This dimensional formula is expressed by square bracket and no comma is written in between any of the symbols. ये सारे रूल्स के साथ बस ये सारे रूल्स के साथ उन्होंने ये भी बता दिया कि भाई डायमेंशनल फार्मूला मतलब क्या है, जो हमने पावर्स के साथ सिंबल लिखे उनका जो एक मिला जुला स्वरूप है, और वॉट एवर फॉर्म वी हैव पुट दैट फॉर्म इज नथिंग बट फार्मूला। ओके, सो दे सेड कि डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी व्हाट इट विल बी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो वी नो डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज L बाय T, L के ऊपर 1 पावर, T के ऊपर -1 पावर, बट बीच में M को भूलना नहीं है क्योंकि LMT तो है ही, तो M के ऊपर कोई पावर नहीं, उसका वैल्यू 1 है। मतलब आपको अगर मालूम है रेस टू 1 पावर्स के नियम, तो इसका मतलब M के ऊपर हमें 0 देना पड़ेगा। ये जो छोटी छोटी चीजें हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी ही चाहिए। डायमेंशनल फार्मूला फॉर वेलोसिटी ग्रेडियंट, अभी ग्रेडियंट का मतलब समझिए। अगर ग्राफ के पेपर के ऊपर एक साइड में मैं वेलोसिटी प्लॉट करता हूँ, दूसरे साइड के ऊपर डिस्टेंस प्लॉट करता हूँ, तो डिस्टेंस वर्सेस वेलोसिटी वाला जो एक ग्राफ बना, उस ग्राफ का अगर मैं स्लोप बनाया तो उसको आप बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, इसका मतलब वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस। कौन से डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे कितनी वेलोसिटी है। तो क्या आएगा, जो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला एनालिसिस है उसके नीचे आप फिर से एक बार डिस्टेंस लिख दीजिए। तो पहले L के सर पे 1 था, दिख रहा है बड़ा बड़ा, अभी उसके नीचे और एक L आ गया, तो बाय रूल्स ऑफ द पावर्स हम क्या करेंगे, ये L जो है वो ऊपर जाएगा, तो 1 से 1 माइनस हो जाएगा, तो L रेस टू 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट विल बी L रेस टू 0, M रेस टू 0, T रेस टू -1। अभी चलते हैं और एक चीज में, डायमेंशनल फार्मूला फॉर चार्ज। चार्ज इज नथिंग बट I इंटू टी। I मतलब सॉरी करंट, करंट I है, टाइम T है, तो यहाँ पे L के रेस टू 0, M के रेस टू 0, T रेस टू 1 एंड I रेस टू 1। आप देख रहे हो वो सीक्वेंस बिल्कुल बिगाड़ नहीं रहे, L M T फिर आगे का I आएगा, C आएगा, वॉट एवर इट में बी, ये आपको भी पक्का याद रखना है। सो नाउ नथिंग बिग व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू, ये चीज
आपको जोर से बिल्कुल नहीं पढ़नी नहीं है, मन ही मन में पढ़नी है, समझ लेना है, और 1 मिनट बाद मैं खुद ही इस चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँ. टेक दैट 1 मिनट फ्रॉम मी एंड जस्ट गो अहेड. एक बार नजर घुमा लीजिए. चलो आधे मिनट में ही मेरा 1 मिनट खत्म हो गया, ऐसा मान लेते हैं, एंड देन वी प्रोसीड. You know, physical quantity, density, acceleration, momentum, force, impulse, work, kinetic energy, pressure. अभी यहाँ हम सिर्फ टेबुलेशन कर रहे हैं कि ये जो हम फिजिकल क्वांटिटी लिखे उसका फार्मूला क्या है. तो फार्मूले के कारण उस फिजिकल क्वांटिटी का एसआई यूनिट क्या है, और एसआई यूनिट का फिर और फार्मूले के हिसाब से हमने उसका डायमेंशनल फार्मूला लिख दिया. बट ये भूलना नहीं है कि हमको यहाँ फार्मूला मालूम पड़ रहा है तो हमको फार्मूला याद भी करना है. मतलब एक बार आपको मालूम है डेंसिटी इज नथिंग बट मास अपॉन वॉल्यूम, एक्सेलरेशन इज नथिंग बट वेलोसिटी with respect to time, momentum is nothing but mv, mass into velocity, force is nothing but mass into acceleration, impulse is nothing but f, force into time. So work is nothing but force into displacement, kinetic energy is nothing but half mv square, and pressure is nothing but force upon area. अभी ये फार्मूले एक समझदार एवरेज बच्चे के लिए जिंदगी भर याद रहते हैं. आप कौन सी भी एग्जाम में बैठे हो तो आप वहां अड़ नहीं जाना चाहिए, ये शायद मैंने कभी 11वीं में पढ़ा था, अभी तो याद ही नहीं आ रहा है क्योंकि मुझे किसी ने पढ़ाया नहीं. कम आउट ऑफ दिस चाइल्डिश थिंकिंग. जो आप पढ़ रहे हो, पढ़ते जाने वाले हो, या आगे लगने वाला है. अप टू 10th इट वॉज फंडामेंटल. मतलब आज भी मुझे कोई 7th का 8th का 9th का कोई मैथमेटिकल सम पूछ ले तो मुझे शायद मालूम नहीं होगा मेथोडोलॉजी, क्योंकि मैं बहुत सालों से किया नहीं है, तो थोड़ा वक्त लगेगा. बट इफ माई फंडामेंटल्स आर स्ट्रांग तो कैसे ना कैसे तो मैं जवाब ढूंढ लूंगा. 11वीं से थोड़ा आपने जो पढ़ा वो फंडामेंटल, थोड़ा एप्लीकेशन, थोड़ा लॉजिक, ये सब चीज का मिक्सचर इस्तेमाल होने वाला है, जो ज्यादा मात्रा में आपके ग्रेजुएशन के बाद वाले एग्जाम्स में, इंटरव्यू में काम आएगा. भले आपको एमएससी करना हो, पीएचडी करना हो, आपको इंजीनियरिंग के बाद फॉरेन में जाके कुछ एग्जाम देना है, या फिर जैसे सीएससी कॉम्पिटिटिव सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन देने, सब जगह ये लगता है. तो दिमाग में पक्का बांध लो कि ये सब आपको लगना है. ऐसा यूनिट्स की बात करेंगे नॉर्मली, बाकी सब दिमाग में रखते हुए. तो वी नो डेंसिटी अगर मास बाय वॉल्यूम है तो ऑब्वियसली केजी पर क्यूबिक मीटर, so kg per m raised to 3. Meter per second square, that is acceleration, is nothing but m slash s square. Kilogram meter per second, that is nothing but momentum. ओके, तो केजी मीटर सेकंड. आप यहाँ देखेंगे जरूर केजी और एम के बीच में थोड़ा स्पेस छोड़ा गया, जो नियम हमने पहले पढ़ा था. सेम इज एप्लीकेबल टू ऑल किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. क्यों आया? क्योंकि एक्सेलरेशन इज नथिंग बट मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और किलोग्राम वाला मास का है, तो आपका फोर्स का हो गया. अभी ये चार जो हमने पढ़े इनका इमीडिएटली डायमेंशनल एनालिसिस भी देख लेते हैं. किलोग्राम की बात की तो ऑब्वियसली मास के सर पे 1 आ गया. पर क्यूबिक मीटर आ गया, तो मीटर है मतलब आपका एल है मतलब एक एल के लिए 1, तो 3 एल के लिए 3. तो एल के सर पे 3 आ गए, बट वो है डिनोमिनेटर में, तो ऑब्वियसली जब न्यूमरेटर में उसको एक लाइन से लिखेंगे तो उसको प्लस का माइनस हो जाएगा. ये प्लस माइनस पावर्स का करना अगर सचमुच प्रॉब्लम है तो मैं आप सबको एक चीज रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. ये ऑनलाइन क्लासेस में आप कुछ लोगों को थोड़ी थोड़ी तकलीफ है. जैसे समीर ने एक सुझाव दिया था कि सर आप डायरी लेके अगर पेन से बना दे तो उससे अच्छा, तो मैं आपको एक सुझाव देता हूँ, क्यों ना आप लोग एक डायरी बनाओ और डायरी में जो जो चीज आपको समझ में नहीं आई वो लिखते जाओ. और वो सारी चीज अगर गलती से कोरोना क्राइसिस के बाद एक दिन 4-5 घंटे के लिए हम मिल पाए तो एक ही दिन में सब सफाचट सब क्लियर कर देंगे. तो मतलब आपको भी ये नहीं रहेगा कि नहीं सर ये मैं समझा ही नहीं, उस दिन रह गया सितंबर महीने में समझना, तो सितंबर से अभी देखिए मार्च आ गया तो भी समझना बाकी है. ऐसा होना तो नहीं चाहिए क्योंकि गूगल है, बट फिर भी होना नहीं चाहिए. तो आप डायरी में लिखो और जब फिजिकली मिलेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे. लेट्स गो फर्दर. हमने बात की
पहले वाले की, जहाँ पे केजी के लिए मीटर को 1 सर पे आ गया, मीटर क्यूब एम के, ओके सॉरी, मीटर क्यूब के लिए एल के सर पे -3 आ गए, टाइम का कोई वास्ता ही नहीं है तो टी को 0 कर दिया। एक्सेलरेशन में मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो सेकंड मतलब टी के ऊपर -2, एल के ऊपर 1 और एम के ऊपर 0, पावर की बात कर रहा हूं मैं। वैसे मोमेंटम के लिए एम वी, तो ऑब्वियसली एम आया तो एम के ऊपर एक वी मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मतलब एल, एल के सर पे 1 और टी के सर पे -1। इस तरीके से ये सारे डायमेंशनल एनालिसिस लिखे गए। अगर फार्मूलाज क्लियर है तो इसमें मैं वक्त जाया नहीं करूंगा, बट देन लास्ट 2 ले लेता हूँ। हाफ एम स्क्वायर में आप कांस्टेंट हाफ को निकाल दीजिए, एम तो फिर से वही आ गया, मास मतलब मास के सर पे 1 आ गया, वी स्क्वायर आ गया मतलब मीटर पर सेकंड के ब्रैकेट का स्क्वायर, मतलब मीटर का भी स्क्वायर, सेकंड का भी स्क्वायर, तो मतलब मीटर में मतलब एल के ऊपर 2 आगे होंगे आए, और सेकंड के ऊपर मतलब टाइम के ऊपर -2 आए। तो ये चीज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लास्ट वाला देख लेते, केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो केजी मतलब एम के ऊपर 1 और ये दोनों नीचे है डिनोमिनेटर में, तो दोनों के सर पे माइनस आ जाएगा, जो है एम के सर पे, सॉरी एल के सर पे -1, टी के सर पे -2। ये डायमेंशनल एनालिसिस है, दुनिया के सबसे आसान चीज है, फिर भी आपको तकलीफ है तो फिजिकल क्लासेस में वो एक्चुअली अच्छे से हो जाएगा। टेबल 1.3 gives the dimensions of various physical quantities commonly used in a mechanics. मैकेनिक्स इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का सबसे टफ सब्जेक्ट है, जो फिजिक्स से ही निकलता है और बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, तो जिनको वहां अभी से कॉन्फिडेंस लाना है उनको यहाँ ध्यान देना है। यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, क्या भाई इतनी मेहनत की, इतना सब सीखा, चौकोन बनाना, स्क्वायर ब्रैकेट वगैरह, तो क्या यूज है? टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। ये सारे जो है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, वी इज इक्वल टू एम डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सारे नहीं बोले तो भी फिजिकल क्वांटिटीज के रिलेशनल इक्वेशन है। इनके बीच में in any equation relating different physical quantities, if the dimensions of all terms on both the sides are same, then that equation is said to be dimensionally correct. This is called the principle of homogeneity of dimensions. Consider the first equation of motion. आपको ये इक्वेशन नहीं पता तो आज नए सिरे से शुरू कर दो। v is equal to u plus at. v is a final velocity, u is a initial velocity, plus acceleration is a, and time taken during this particular motion of particle, body, whatever you call, is t. तो इस फिजिकल रिलेशनल इक्वेशन में क्वांटिटी के हम अगर डायमेंशन डालना शुरू कर दे तो v वेलोसिटी है, तो मतलब जो हमने पिछले ब्रैकेट में v वाला पढ़ा, क्या मीटर पर सेकंड वाला, वो डालेंगे। u को भी वही एप्लीकेबल है। एक्सेलरेशन वाला हमको मालूम है कि वेलोसिटी के नीचे जो टाइम आता है तो जो बनता है वो एक्सेलरेशन है। टाइम इज t⁻1। उन्होंने LHS लिया, लिख दिया, u लिखा, AT लिखा, फिर साथ में रखा। RHS में भाई जोड़ना है तो उन्होंने सम करना है तो सम कर दिया ये, और इस सम करके उसको कैसे जोड़ा है देखिए कि इस चीज को इसके साथ जोड़ने से क्या आया जवाब, देखिए आप, u L t⁻1, AT is nothing but L t⁻1। आप बोलोगे LHS इक्वल टू RHS कहाँ हुआ, ये तो 2L t⁻1 हो गया। सही, कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है जिन्होंने ये नहीं सोचा कि हम यहाँ पे x plus y is equal to 2 and 2x plus 3y is equal to 7, तो हम x और y की कीमत निकालने के लिए जो रूल्स लगाते हैं वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ एप्लीकेशन ये है कि जो भी चीज समेशन या सब्ट्रैक्शन के अक्रॉस इधर उधर है वो सारे चीज का डायमेंशनल फार्मूला जो है वो सेम होना चाहिए। तो अगर ये चीज आपको समझ में आई होगी तो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे ये जो v किधर के भाई साहब, हाँ ये जो आया एक क्वांटिटी का बना, u का ये आया और at का ये आया। जब हमने ये लिखा तो ये आया। अगर मैं यही LHS लिखना चाहता हूँ
तो मुझे यही लिखना है। तो यहाँ जो 3 क्वांटिटीज मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ, RHS की जगह ऊपर वाली क्वांटिटी टेम्पररी लिख दूं, तो इससे ये चीज होता है कि यहाँ जो 3 फिजिकल क्वांटिटी के बीच में रिलेशन दिखाने की कोशिश की जा रही है वो डायमेंशनली सेम है, मतलब ये इक्वेशन सही है। एज द डायमेंशंस ऑफ LHS एंड RHS आर द सेम, द गिवन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दूसरा क्या यूज है? टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी। दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, ये भी काम डायमेंशनल एनालिसिस अच्छे से कर सकता है। कैसे? पीरियड टी ऑफ ऑसिलेशन आपको मालूम है, एक ये होता है पेंडुलम, उसका एक ऑसिलेशन होता है। जैसे हम बात करें इवन घड़ी की, तो घड़ी का भी अपना एक पीरियड है। सेकंड हैंड जो है वो भाई 60 सेकंड में एक चक्कर लगाता है। मिनट हैंड जो है वो 1 घंटे में चक्कर लगाता है। आवर हैंड जो है वो 24 आवर्स में चक्कर लगाएगा, 12 आवर्स में चक्कर लगाएगा। तो ये जो उनके पीरियड्स है, वैसे ही अगर एक पेंडुलम का पीरियड टी लिया जाए तो टी ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन लेंथ, आपको पता है, एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो उसके ऊपर खींचने वाली चीज है उसके मास के कारण, वो है पृथ्वी का खिंचाव। चंद्रमा पे जाओगे तो चंद्रमा का खिंचाव, जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं। लेट अस डिराइव द रिलेशन। कैसे? सबको मालूम है कि जितना लेंथ बढ़ेगा पेंडुलम का उतना पीरियड बढ़ेगा। सपोज टी इज प्रोपोर्शनल टू एल, तो टी इज प्रोपोर्शनल टू ग्रेविटी आल्सो। अभी आप बोलोगे बट सर ऊपर की नीचे, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि डायरेक्टली, कैसे पता चलेगा? वो डिफाइन करेगा यहाँ जो एल के ऊपर ए लिखा है वो, और यहाँ जी के ऊपर जो बी लिखा है। तो फार्मूला तो यही बनेगा कि टी इज प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू समथिंग एंड जी रेस टू समथिंग। तो हमने एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चला जाए। तो चला गया क्या? चला गया। where k is constant of proportionality and it is a dimensionless quantity, and a and b are rational numbers equating dimensions on both sides. अभी आप बोलेंगे मतलब क्या करना क्या है यहाँ पे? कुछ नहीं करना है। टाइम पीरियड जो है उसमें सिर्फ टाइम रहेगा, तो t रेस टू 1, तो m के ऊपर 0, l के ऊपर 0, k तो कांस्टेंट है। लेंथ के मामले में बात करेंगे तो l रेस टू 1, सर पे a रहेगा। ऑन जी की जहां तक बात करें तो ये भूलना नहीं है कि ये ग्रेविटी नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मतलब जो ए के लिए ढूंढा था वही जी के लिए एप्लीकेबल है। तो एल टी रेस टू -2, उसके रेस टू हो गया बी। अभी आपको पावर्स के जो नियम है वो पता है। तो एल के ऊपर एक ए था, दूसरा एल के ऊपर -2 भी आ गया कि नहीं, सॉरी, एल के ऊपर दूसरा बी आ गया। तो जब साथ में आएंगे तो मल्टीप्लिकेशन के टर्म्स में पावर्स का जो है समेशन होता है। तो एल रेस टू, ये आपको समझ में आ रहा है? ऐसा मैं पकड़ के चलता हूँ, नहीं तो आप बोलोगे चलते जा रहे हैं आप। अगर मैं यहाँ, रुको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ लिखूं कि एल के ऊपर ए 1 था, इधर ए था, ठीक है, दूसरा वहां से आया इनटू वाला, एल के ऊपर 1 था, बी भी आया। तो ये दो जो मल्टीप्लिकेशन है, ऑब्वियसली एल के ऊपर आने के बाद ए प्लस बी हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ जो टी है वो टी के ऊपर तो कुछ है नहीं, तो टी के ऊपर का ये जो -2 है वो बी के साथ जुड़ गया, तो -2 बी हो गया। ये चीज आप सबको समझ में अच्छे से आती है, ऐसा मैं पकड़ के चलता हूं। तो अभी मुझे मिटाने में थोड़ा समय लगेगा, सॉरी। ठीक है, ड्राइंग इज डन। अभी चलते हैं आगे। तो यहाँ हमने जब कंपैरिजन किया तो एल के ऊपर 0 है, यहाँ a प्लस बी है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 0 मिला, और -2b इज इक्वल टू 1 मिला। तो कंपेयरिंग द डायमेंशंस ऑफ करस्पॉन्डिंग quantities we get a plus b is equal to 0 and a is equal to -b। तो a और b के बीच का रिलेशन मिला एंड b डायरेक्टली ऊपर जाएंगे तो मिल जाएगा जो इन्होंने दिया होगा। 2b is equal to -1
सॉरी -2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय 2, मतलब एक्चुअली रूट आएगा, तो उन्होंने वो वहां ही डाल दिया। a जो है इज इक्वल टू -b, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो a हाफ हो गया एंड b माइनस हाफ हो गया, मतलब t इज इक्वल टू k इंटू l रेस टू हाफ एंड g रेस टू माइनस हाफ, मतलब t is directly proportional to the root of length and t is inversely proportional to the root of gravitational influence or gravity or gravity acceleration due to gravity. Value of k is determined experimentally and is found to be 2 pi. अभी इसमें नहीं जाएंगे क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस जो है वो आपको जरूरत होगा तो आगे पढ़ाया जाएगा, मोस्टली इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ यूर स्टडी, होगा तो देखा जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी गॉट। क्या मिला हमको? ये जो पीरियड ऑफ पेंडुलम और एनी ऑसिलेटिंग थिंग जो मिला, उसका लेंथ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ जो रिलेशन लाया, जो हमने यहाँ लिखा था, एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहाँ ये चीज आ गई। अभी हम चलेंगे टू फाइंड द कन्वर्जन फैक्टर बिटवीन द यूनिट्स of the same physical quantities in different systems of unit. आसान है। Let us use dimensional analysis to determine conversion factor between the joule, that is SI unit of work, and ergs, that is a CGS unit of work. 1 joule is equal to x ergs, ऐसा पकड़ लेते हैं। Dimensional formula of work is, अभी आप बोलोगे सर हर चीज याद रखनी, बिल्कुल याद नहीं रखनी। Never forget, work is nothing but force into displacement. फोर्स इज नथिंग बट मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास आपको मालूम है क्या है, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर मालूम है आपको, और डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट डिस्टेंस, मतलब इसमें कितने m आए, कितने l आए, कितने t आए, इसका हिसाब आप 11th में याद नहीं करोगे तो भी एक्चुअल एग्जाम में भी करोगे तो आपको सफिशिएंट टाइम रहता है, तो याद करने की जरूरत नहीं है। ऐसे मेरे जैसा व्यक्ति बोलेगा जो हर चीज याद करने में नहीं, प्रैक्टिस करके दिमाग में रखने में विश्वास रखता है। बट देन इफ यू आर टू मच कंफर्टेबल एंड योर मेमोरी पावर हैज रीच्ड टू दैट पर्टिकुलर लेवल, तो गलती नहीं करने वाले तो याद रख सकते हैं। तो एक -1 ऊपर की जगह नीचे आ गया तो खत्म हो गई स्टोरी, इसको आप याद रखेंगे। तो डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क इन्होंने लिखा है तो हम भी उसी को उठा लेते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग इन अबव इक्वेशन, क्या कर दिया उन्होंने, 1 जूल तो यहाँ पे लिख दिया, x इंटू अर्ग्स लिख दिया। क्या लिखा कि m1 इज फॉर द जूल, देन m2 इज फॉर द अर्ग्स। फिर इन्होंने x इज इक्वल टू ये कर दिया, ऊपर जाके इन्होंने x इज इक्वल टू m1 बाय m2 रेस टू 1, l1 बाय l2 रेस टू 2 एंड इनके ऊपर -2 किया। तो अगर इनको उल्टा पुल्टा करेंगे कि t2 बाय t1 करेंगे तो वो -2 भी प्लस हो जाएगा, और अभी उसमें नहीं जाए। सफिक्स 1 इंडिकेट्स SI यूनिट एंड सफिक्स 2 इंडिकेट CGS यूनिट। ये सफिक्स प्रीफिक्स वगैरह आप जो चीज नहीं समझेगी प्लीज गूगल पे थोड़ा ढूंढिए, आपका ना थोड़ा वोकैबुलरी, बैकग्राउंड नॉलेज, ये सब चीजें बढ़ेंगी। आप सोचेंगे पढ़ाने का काम मेरा है और मैं आपको काम दे रहा हूँ, बट नॉर्मली दिस इज द राइट मेथोडोलॉजी टू स्टडी। लेट्स गो फर्दर। इन SI यूनिट्स LMTR expressed in a meter, kg and second. In CGS system, LMTRx represented in centimeter, gram and seconds respectively. तो भाई जहां M1, L1, T1 था वहां पे उन्होंने वो यूनिट डाल दिए, और जहां पे 2 वाले थे उनको वहां CGS यूनिट डाल दिए। नाउ वी नो कितना kg कितना ग्राम है, 1000 ग्राम इज 1 kg, 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो वो चीजें डालने के बाद हमको क्या मिला, 10⁻³ सेपरेट आउट हो गया और जी गायब हो गए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के। 100 मतलब 10⁻² बाहर आ गए, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर गायब हो गए क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में। बट 10⁻² के सर पे भी तो पावर में 2 है, तो 2 इंटू 2 हो गए 4, तो 10⁻³ मिला, 10⁻4 मिला, और 1 के ऊपर -2 हो -5 हो डजेंट मैटर, इट विल रिमेन इट्स वैल्यू टू द यूनिटी। तो 10⁻3 10⁻4, तो उसी नियम से, जो नियम हमने थोड़ी देर पहले देखा था, मेरी करने की जरूरत नहीं है बट पता नहीं आपको अच्छा लगता होगा तो मैं कर ही देता हूँ। ये है कि अगर आप 10⁻3 लिखते हो इंटू 10⁻4 लिखते हो तो इसका मतलब होता है 10⁻3 + 4 विच इज 10⁻7, जो उन्होंने वहां लिखा।
इतनी छोटी चीज आप सबको पता है क्योंकि आप सब होशियार बच्चे हो, तो इसमें जाएंगे नहीं। Oh, sorry. We'll go out of this. अभी आते हैं एक सिंपल से एग्जाम्पल। इसमें लिखा है 1 कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ हीट एंड इट इक्वल्स 4.2 जूल। ओके, 4.185 है एक्चुअली वो। वेर 1 जूल इज इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर सेकेंड रेस्ट टू -2। ये अभी आपको फिर से याद करना भूलना नहीं है जो हमने यहाँ से उठाया। ओके, ये वर्क से आया, वर्क का जो यूनिट है वो जूल है, और वो जूल से उन्होंने ये उठाया है। तो आप बार बार मुझे या आपने आपको ये मत पूछिए ये कहाँ से आया। तो 1 जूल ये है। A distant civilization employs a system of units in which the unit of mass, length and time are alpha, kg, beta, alpha kg, beta meter and what is that seconds के लिए उन्होंने कुछ और किया। Let's get into that. यहाँ लिखा gamma seconds. Okay. Also, एक मिनट, ये गायब हो गया, सॉरी। अरे बाप रे, चलो एक मिनट, ठीक है, यहाँ तक तो आप सब सही थे। प्रेजेंटेशन मेरा गायब हो गया, मैं लेके आता हूँ पकड़ के। ऐप इज नॉट अवेलेबल, वेट। वाह, डायरेक्ट वही पे खुला। दिख रहा है क्या संकल्प? आई एम ऑडिबल No, sir. एंड नो? Yeah, visible, yes, sir. अभी दिखा। ओके ओके, ठीक है। थोड़ा नेटवर्क अपने इतना फास्ट नहीं होता है ना, उसको वायर के थ्रू घुस घुस के आपको डाटा पहुंचानी होती है ना, थोड़ा लेट हो जाता है। एनीवे, so we were talking कि somebody is referring some system of units in which the kgs, meters and seconds are alpha, beta, gamma proportionate, मतलब या उतने कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। so also j dash is their unit of energy। हम जूल इस्तेमाल कर रहे थे, वो लोग मतलब j इस्तेमाल कर रहे थे, वो लोग j dash इस्तेमाल कर रहे थे। what will be the magnitude of calorie in their units? तो अभी कैलोरी का कन्वर्जन भी सीखना पड़ेगा, हीट यूनिट जो है। तो लेट अस राइट द न्यू यूनिट एज ए बी एंड सी फॉर मास, लेंथ एंड टाइम रिस्पेक्टिवली। 1a is equal to alpha kg, 1b is equal to beta meter and 1c is equal to gamma second। 1 calorie is equal to 4.2 joule which is 4.2 kg meter square per second square। मैं पर बोलता हूँ, मतलब वो स्लैश अज्यूम करना है, या डिनोमिनेटर में वो सेकंड है तो उसको स्क्वायर बोल सकता हूँ। आप अगर सिर्फ मतलब प्लेन रीड कर रहे हो तो kg⁻1, मीटर⁻2, सेकेंड्स⁻2 भी पढ़ सकते हैं। तो 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 ए बाय, यहाँ हम वो डाल रहे हैं ना, केजी की जगह हम क्या डाल रहे हैं, ये इधर ट्रांसफर करके 1a बाय अल्फा, मीटर की जगह 1b बाय बीटा एंड सेकेंड्स की जगह 1c बाय गैमा डाल रहे हैं। तो आ गया 4.2 गैमा रेस टू। अभी मैं आपको याद होगा थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर मैं ये 2 को प्लस कर दूं, -2 को, तो ये जो c बाय गैमा है वो गैमा बाय c हो जाएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे आएगा 4.2 गैमा स्क्वायर a b स्क्वायर c स्क्वायर। तो c स्क्वायर मतलब c का -2, और अल्फा का तो ऑटोमेटिकली ⁻1 है और बीटा का स्क्वायर है। सो 4.2 गैमा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू इंटू जे डैश। जे डैश क्या है हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। जे डैश हमने इंट्रोड्यूस किया है देयर यूनिट ऑफ एनर्जी। तो देयर यूनिट ऑफ एनर्जी इज दिस। thus in new units 1 calorie is equal to 4.2 gamma square divided by alpha beta square j dash। ये प्रॉब्लम में आपने जो सिंप्लिसिटी पिछले प्रॉब्लम में देखी थी यहाँ पे, वो गायब करके कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व किए और आपको कोई फाइनल न्यूमेरिकल फिगर नहीं मिला, तो आपको थोड़ा टेंशन आ सकता है क्या आया, सही आया कि नहीं। कुछ ज्यादा नहीं, आपको सिर्फ आदत डालने की कोशिश की जा रही है कि आप जो पढ़ते हो उसको अगर वेरिएबल्स के टर्म्स में, मतलब अल्फा बीटा गैमा या ए बी सी डी पी क्यू आर के टर्म्स में डालना है, तो आपको इमीडिएटली स्ट्रेस नहीं होना है। ओके, ये चीज अगर आपको क्लियर है। आवाज आ रही है संकल्प? क्योंकि मुझे एक कॉल आया था, मैंने उसको डिक्लाइन किया।
Yes, sir, audible. Yeah, thank you. So this is where we will stop today. Limitation of the dimensional analysis है अपने, फिर accuracy, precision, uncertainty is something जो आपको रीड करना है, सॉरी आपको एक्चुअली समझना है. आपको रीड करने तो बोलता हूं मैं, मालूम नहीं आप पढ़ते भी होंगे, बट ये चीज इंपॉर्टेंट है ये पूरे चैप्टर में. एंड दैट इज गोइंग टू बी कंटिन्यूड फॉर, अभी हम लोग पेज नंबर 8 पे है, कम से कम 4-5 पेज ये चलता रहेगा सिलसिला, तो हम उसको सेपरेटली टच करेंगे. आज हम इस चीज को समझ सकते थे, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, बट वो जो कुछ मुझे व्यक्ति फोन कर रहे हो बार बार कर रहे हैं, तो मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा हूँ. ओनली 5 minutes आर लेफ्ट, 4 minutes आर लेफ्ट, सो वी विल स्टॉप हियर. आई नो ये जो तरीका चल रहा है, ये तरीके से आपको अगर कुछ आपत्ति भी है तो यू कैन कीप सेंडिंग मी फीडबैक, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जिनसे मैं बात कर रहा हूँ डायरेक्टली, क्योंकि वो थोड़ा सिंसियर है, तो दे आर सेइंग कि इट इज गोइंग वेल. फिर भी ये भूलना नहीं है कि ये आपके कॉलेज में भी कवर होगा. एंड देन प्लान्स फॉर द स्टार्टिंग ऑफ द एकेडमिक सेशन एंड सीजन डिड नॉट मेक यू थिंक कि भाई पढ़ना नहीं है. वो कभी भी शुरू हो, आप जो 11वीं में पढ़ेगे वो 12वीं में काम आएगा और जिंदगी में काम आएगा. तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए. सो आई जस्ट कम आउट ऑफ माय प्रेजेंटेशन पार्ट and I'll just check whether anything you have written in a chat box. So अगर चैट बॉक्स में कुछ नहीं है तो हम फिर आगे इधर ही स्टॉप करते हैं इस चीज को. So thank you very much for your presence. संकल्प, आर्या, बाय. Thank you.